Does it show that it started? Yes, हाँ भैया. भैया. Visible है? Yes, भैया. Okay. तो हमने लास्ट क्लास में लास्ट कुछ क्लासेस में प्रपोजल डिस्कस कर लिया था, जो कि हमारा इनिशियल पॉइंट था हमारे कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट्स है उनके. तो हम अभी एक्सेप्टेंस पे आ रहे हैं कि जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है ऑफरर का, तब वो प्रॉमिस बन जाता है. तो वो किस तरीके से होता है आज हम इस क्लास में जानेंगे. मेरे को लग रहा है कि 2 क्लासेस लगेंगे इस पूरे टॉपिक को समझाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस from contract law come from this chapter, because there are a lot of fact scenarios that are complicated when it comes to acceptance, and it requires you to apply your mind sometimes, and we'll be discussing where you have to do that and what the law on this is. All right, so Section 2B of the Indian Contract Act talks about the acceptance of an offer. According to the section, the person to whom an offer is made to do or abstain from doing an act with a view to obtain the assent of such person, if he gives his assent thereto, is said to have accepted the offer. Very simple. We had discussed this at length in our definitions section 2 wala class. The basic terms wala class. We had, what it basically says is that the person to whom the offer is made, मतलब जिसको ऑफर दिया जा रहा है, कुछ कार्य करने के लिए, उससे असेंट लेने के लिए, अगर वो अपना असेंट दे देता है, तो वो ये क्या कहा जाता है इसको कि इसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. एक्सेप्टेंस के भी 2 प्रकार है, जैसे कि हमने प्रपोजल में पढ़ा. 2 प्रकार है, एक इम्प्लाइड होता है और एक एक्सप्रेस होता है. इम्प्लाइड टू whom an offer is made. ठीक है. तो अगर लिखित में या मौखिक, मतलब अगर बोला नहीं है या लिखा नहीं है, और अपने जो कार्य कर रहे हैं वो, मतलब जो कॉन्डक्ट है उनका, उसके द्वारा आप, उसके थ्रू आप अगर अपना एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उसको इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं. और एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस तब होता है जब आप क्लियरली थ्रू द यूज ऑफ वर्ड्स, वेदर ओरल और रिटन, ये एक्सप्रेस कर देते हो कि मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. जैसे कि A offers B his wristwatch for sale through a mail, and A replies in positive to the offer by email. कि A ने B को बोला कि मैं अपना घड़ी बेच रहा हूँ, और एक्चुअली B होना चाहिए. B कहता है कि हाँ मैं ये खरीदूंगा, तो ये एक्सेप्ट हो गया ऑफर. और ये ईमेल होना चाहिए. ईमेल से भेजा, ईमेल से रिस्पॉन्ड किया. हम क्यों, ये इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा रिस्पॉन्ड किया, ये भी हम इसी क्लास में जानेंगे. तो ये क्वेश्चन है पहला आज का. आई नीड अ वॉलंटियर टू read the principle and the facts, and someone else to explain the whole principle and the fact scenario. Who will be volunteering? भैया मैं आई. There are too many people who raised. Somnath can attempt today. Somnath. Okay. Yes. Yes, sir. An agreement does not result from a mere state of mind, intent to accept an offer, or even a mental resolve to accept an offer does not give rise to a contract. There must be some external manifestation of that intent by speech, writing, or other act. Facts. B had been supplying coal to a railway company without any formal agreement. B suggested that a formal agreement should be drawn up. The agents of both the parties met and drew up a draft agreement. It had some blanks when it was sent to B for his approval. He filed up the blanks, including the name of an arbitrator, and then returned it to the company. The agent of the company put the draft in his drawer, and it remained there without final approval having been signified.
B kept up his supply of coals but on the new terms and also received payment on the new terms. A dispute having arisen, B refused to be bound by the agreement. Decide. Okay, now someone volunteered to explain the fact scenario and tell what the judgment of the court should be. Okay, Gautami, you make your debut today. Enlighten us. Bhaiya, here principle is given that an agreement does not result from a mere, like an agreement cannot be, like the agreement cannot be arising from just a mere mere state of mind. That means it is that intent to accept an offer or even a mental resolve to accept an offer does not give a right to it. It means that even if you have thought within yourself that if I'll be putting up this offer and cannot and you cannot think by yourself that the person will accept it, and like there should be a very absolute communication between the two to give a rise to a contract. There must be some external manifestation of the intent of speech or writing, or so it's written that there should be a way that the offer is being accepted, whether it should be expressed or it should be implied. It should be written up in the other form of act. So here there's a situation given in which B had been supplying coal to a railway company without any formal agreement. So B is a party which is supplying coal to a railway company, but there is no formal agreement between the railway company and B. B suggested that the formal agreement should be drawn up. After that, B came up with a suggestion that a formal agreement should be made between us to ease up the things. The agents of the both party met and drew up a draft agreement. They made to like they represented the company through agents, and the agents of the both party came and they drafted an agreement. It had some blank when it was sent to B for his approval. So the railway company, when they made up the draft, they sent that draft to B, but there were some blanks. There were some blanks left for the B for his approval. He filled up the blanks, including the name of the arbitrator, and then he returned it to the company. After that, what did B do is he filled up the blank which was being necessarily kept for B, and after that he filled up everything and then sent it to the company for approval. The agent of the company, here it's talking about company, the agent of the company put up the draft in his drawer and it remained there without the final approval that has been signified. That means the changes, like the things which was being filled by B were not being approved by by the side of the railway company, because they have just merely kept it in their drawer and they have not responded to it. And more importantly, the agent has kept it in his drawer. Yes, not B. Not the main. Yeah. B kept up his supply. B was in the mere state of mind that, okay, I have been sent, so they must have been approved the thing which I have written. So B kept his supply of coal, but on the new terms, which he had filled, and also received the payment on the new terms. When he received the payment, there's a dispute arise between A and B because of this agreement. Okay. Before we get So to now, the crux of the like, issue, shall I proceed with? Wait. 1 minute. Someone else say what an arbitrator is. It is not necessary for this, but legal knowledge improve हो जाएगी. Arbitrator कौन होता है? Mediator. Mediator और arbitrator अलग लोग होते हैं. Then because mediation is a different thing, arbitration is an different thing. Anyone who's aware of the distinction, let's not get into the distinction. Let's get into what an arbitrator is first. Maybe But the person who is put to solve the disputes. It's basically a independent person who is officially appointed by the both of the parties to settle a neutral body to settle a dispute. Good. So basically, I'll explain the very basic meaning of arbitrator and arbitration. Usually what happens is that when there is a dispute arising from any civil wrong, whether it's a tort or arbitrators can't be appointed in a tort, but I don't know, but let's say a violation of a contract, then they use the civil procedure code and approach your normal civil courts. But courts in India and in many other jurisdictions are very cumbersome. So people decide that, look, we'll not approach the court, we'll go to an alternative forum that is called an arbitration forum. And in arbitration forums, what happens is that a authorized person who is authorized by both parties
pre-decide that this guy will resolve all our disputes if there is any dispute. So in this contract, whether it's a contract or not, we will be discussing. In this draft contract, there was an arbitrator that was appointed. Okay, this is the basic meaning. Now let's go to the crux of this issue. Can B refuse to pay the railway company or not? Like, can B refuse to supply coal to the railway company or not? Yes, bhaiya, he can. Like he Why? can Who is refuse. this? Who is this? Dhruv here bhaiya. Okay, justify your answer. Like भैया, क्योंकि सामने वाली कंपनी की तरफ से तो एग्रीमेंट साइन हुआ ही नहीं है ना, तो कंपनी क्लेम नहीं कर सकती कोई भी नहीं, कंपनसेशन या सामने कुछ वाली भी। कंपनी ने तो कर दिया। तो कंपनी ने नहीं एक्सेप्ट नहीं किया किया। ना, लाइक कुछ। हाँ, एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। ओके, बट अगर एक्सेप्ट नहीं किया सामने वाली कंपनी ने, तो वो उससे एनफोर्स करवा क्यों रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट? अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो, क्योंकि बी मना कर रहा है ना, सॉरी, बी मना कर रहा है कि मैं नहीं करूंगा, मतलब दूसरी पार्टी बोल रही है कि हम करवाना चाहते हैं तुमसे, मतलब एक्सेप्टेंस हुई है। Are you getting my argument that if there is no acceptance, then why are they enforcing it? Someone else try to use your head and arrive at an answer. Who is this? Shreya, yes. यस भैया। भैया इस एग्रीमेंट का होल पॉइंट ये था कि इसको फॉर्मल एग्रीमेंट कन्वर्ट करना है। Okay. और जब वो फॉर्मल में, जैसे उसने अपना एक्सेप्टेंस तो दिया, बट अभी भी फॉर्मल एग्रीमेंट में कन्वर्ट तो हुआ नहीं, तो he can deny. He can deny. Okay. You are saying that the whole point of this was to have a formal agreement, and since it failed to be converted into a formal agreement, B refuses the right to refuse to supply the coal. Fine. But in this case, why did B continue to supply the goods, the coal, if he was so aggrieved by the fact that there is no formal agreement? Because it says B kept up his supply of coals, but on the new terms. So he accepted the new terms and also received payment on the new terms. So in essence, what was agreed to be achieved through the formal agreement is already being done. So on what ground can you reject it? Any other counter arguments to this? Like भैया, a new dispute has been arisen. So I think because of that, we refuse, like. But okay, a new dispute arose. But till the time the dispute arose, till the time the guy kept it in his drawer and the new dispute arose, in that interim, so he could have refused to supply that. Yes, Shruti. So Bhaiya, he is not approving the agreement, but just because he doesn't want to be bounded by the agreement, but he's continuing the supply because that's on his own will. So he is continuing it. Good. So is continuance tantamount to an external manifestation by speech, writing, or other act? Because he's doing an act, right? That he is continuing to supply on the new terms. So is this an external manifestation or not? Yes, Bhaiya. Yes. Who agrees and who disagrees that this is an external manifestation or not? Yeah, but the final approval was not signified. So It wasn't how? signified, but the standard is not that. The standard is an external manifestation of that by speech, writing, or other act. So in that case, can you argue that this guy indeed lived up to the new contract and his conduct shows that he accepted it? वे लाइक बी ने तो अग्री किया, बट कंपनी ने अग्री नहीं किया ना, प्रॉब्लम तो वही है।
बट कंपनी अग्री नहीं मैं तू समझ नहीं रहा भाई, अगर कंपनी ने अग्री नहीं किया तो वो उससे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स क्यों करवा रहे हैं? अगर नहीं करते अग्री तो बोल देते हैं हाँ मत दे कोल, पर वो बोल रहे हैं कि तू दे कोल और बी मना कर रहा है, कंपनी थोड़ी मना कर रही है। कंपनी की तो एक्सेप्टेंस क्लियर है क्योंकि वो डिस्प्यूट रेज कर रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं हमने एक्सेप्ट किया। B will be bound by the agreement then. Okay. Now, do you guys have any reservations in your mind, or do I move to what the court actually ruled in this case? Should I go ahead? Yeah. Yes, भैया. Yes, Bhaiya. Yes, Bhaiya. Someone read this and explain what the court said. अलवीरा हुसैन, आपको पहली बार देख रहा हूँ, आप पढ़ना चाहेंगे? Yeah, I'm sure. Okay. The conduct of the company's agent in keeping the agreement in his drawer was an evidence of the fact that he had mentally accepted it, but he had not expressed his mental determination, and retention of the agreement was not a sufficient acceptance. But the subsequent conduct of the parties was a conduct that evidenced or manifested their intention. The final acceptance was clearly given. Lord Keynes said, when the company commenced a course of dealing which is referable only to the contract, and when the course of dealing was accepted and acted upon by B in the supply of coals. Okay. Now someone else explain what is being said. Gautami, someone other than Gautami. No one? किसी को समझ नहीं आया? We can say that the act of supplying the coal was Alvira, an. you read na, so it will be very clear to you because you actually put the effort of reading. Someone else, I want to test how attentive and how. Yes, Agrima. इसमें बेसिकली कोर्ट का रूलिंग ये है दैट कि द कंडक्ट ऑफ द कंपनीज एजेंट इज कीपिंग द अग्रीमेंट इन द ड्रॉर, मतलब जब उसने ड्रॉर में रखा तो वो एक एविडेंस है कि उसने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया है, बट ही हैड नॉट एक्सप्रेस हिज मेंटल डिटर्मिनेशन। बट उसने मेंटल डिटर्मिनेशन नहीं दिया है क्योंकि उसने मतलब उसने ड्रॉर में रखा बट उसने पढ़ा नहीं, उसको पता नहीं है, उसने वैसे तो नहीं दिया, बट रखने का एविडेंस, रखने की वजह से ड्रॉर में वो एविडेंस हो जाता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। But the subsequent conduct of the parties was a conduct that evidence was manifested their intention. Okay. The final acceptance was clearly given when the company commenced a course of dealing which is referable only to the contract, and when that course of dealing was accepted and acted upon by B. But B ने कोल की सप्लाई करके मतलब एक कॉन्डक्ट कर दिया है कि उसको पता है, उसने कॉन्डक्ट करा है, एक्ट करा है, उसने कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब उसको पता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसलिए उसने कोल की सप्लाई की है। तो क्या हम इससे कह सकते हैं कि कोर्ट ने ये रूल किया कि ये एक्सेप्टेंस वैलिड थी जो कंडक्ट के थ्रू थी, और ये वाला एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस है कि इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस? इम्प्लाइड है, सॉरी इम्प्लाइड, सॉरी कॉन्डक्ट पर फिर इम्प्लाइड होगा। आप क्लियर हो ना? एक्सप्रेस, हां ठीक है। Yes, then the court's ruling is that it said that देखो अब अगर ये सिनेरियो अभी मैं थोड़ा चेंज कर दूं, अगर मैं कहूं कि जो बी है उसने पुराने रेट्स पे सप्लाई करना स्टार्ट किया और पुराने क्वांटिटी पे सप्लाई किया, तो हम कह सकते हैं कि ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स है उसको उसने नहीं किया ना फुलफिल। ठीक है, देन योर आर्ग्यूमेंट कि उसको पता ही नहीं था, ड्रॉअर में रख दिया था, तो ये वैलिड नहीं है, दैट वुड हैव वर्कड। बट द थिंग इज दैट उसने एग्जैक्टली वही चीजें करी जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई थी, मतलब ये है एक्सेप्टेंस है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। तो ये कोर्ट का रीजनिंग है। कोई फिर भी डिसएग्री करता है तो बोलो। अभी भैया
यहाँ पे मुझे बस एक चीज वो क्लियर समझना है कि यहाँ पे पहले लिखा है कि बट ही हैड नॉट एक्सप्रेस दिस मेंटल डिटर्मिनेशन, मतलब उसमें लिखा है कि जब उसने ड्रॉर में रखा तब वो सफिशिएंट एविडेंस नहीं था नहीं एक्सेप्टेंस था। के लिए, लेकिन जब उसने उस चीज को लेके डीलिंग चालू कर दी, वापस खोल उसने भेजना चालू कर दिया, तब वो क्लियरली गिवन था कि एक्सेप्ट हो चुका है। अच्छा, तो यही है कि मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर वो उस कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट के जो कंडीशंस हैं उसको अपनी डीलिंग्स में फुलफिल नहीं करता, देन द प्रिजम्पशन वुड हैव बीन दैट दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस. But since through his conduct he's showing that he has accepted it, we are the law is saying that for us it is a valid acceptance because it shows through his conduct, and hence it can be termed as an implied acceptance, not an express acceptance. And implied and express acceptance is treated on an equal footing to check whether a contract is valid or not. So hence it was said that B has to supply the goods as per the prescribed manner of the contract, even though that the agent had kept it in his drawer and he did not know, or he claims that he did not know. Actually मेरे को लगता है ये मोस्ट प्रोबेबली फैब्रिकेटेड है, क्योंकि एक बात बताओ, तुम्हारे एजेंट ने ड्रॉर में रख दिया, तुम उसको पूछोगे नहीं कि तुमने कहा क्या क्या हुआ उसका, नहीं बोलोगे, और हाँ ये क्वेश्चनिंग है। और तुम बेचते रहोगे, और जब कोई डिस्प्यूट हो जाए बोलोगे कि नहीं मेरे को तो पता ही नहीं था कुछ भी, मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया. मोस्ट प्रोबेबली इट इज फैब्रिकेटेड, आई मीन प्रैक्टिकली लुकिंग एट इट, बट assuming for the sake of argument that it was a genuine problem, then even then his conduct shows that he should be bound by the agreement. Any other questions on this case? नहीं No भैया। भैया। No way? No way. Okay, sorry. Then we have a question on mode of communication. This is fairly straightforward. Principle है, fact है, कोई पढ़ो पूरा और कोई और समझाओ और अपना डिसीजन. एक मिनट. Okay, Tia can say. Tia hasn't spoken. Mode of communication. Principle. Acceptance should be made in prescribed manner. Acceptance has to be made in the manner prescribed or indicated by the offerer. An acceptance given in any other manner may not be effective, particularly where the offerer clearly insists that acceptance shall be made in the prescribed manner. Facts. A offered to buy flour from B, requesting that acceptance should be sent by the wagon, which brought the offer. B sent his acceptance by post, thinking that this would reach the offerer more speedily. But the letter arrived after the time of the wagon. Decide. Okay, कोई और अभी अपना समझाओ इसको ब्रीफली, और क्या होना चाहिए वो भी बताओ. Yes, अगस्त्य. भैया ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा बिकॉज जो द प्रिस्क्राइब्ड मैनर इज टोटली डिफरेंट. Okay. So you are saying that it is very essential for the manner prescribed to be followed, and if there is a diversion from that, the contract is rejected, like it's deemed not to be valid. Because it is written in the principle, and acceptance given in any other manner may not be effective, particularly where the offerer clearly insists. So A clearly insisted, the B. So this is the reason. So fairly straightforward, very easy to answer this. Any disagreements with Agastya? I presume so. There would be no disagreements because you're right. The court, I don't know the exact case. There was a citation given, but I did not actually go ahead and look up the citation. It's not relevant. See, again, this Brogden versus Metropolitan Railway Corporation, it is not a landmark case. You don't need to know it. It's not like Kalil versus Carbolic Smokeball Company. It's not that famous. So it's not necessary for you to remember the case name. But the principle that was set out through this case, it's very relevant for you. That's why I used this case as a question and asked you to debate and
read and debate upon it and arrive at a conclusion. So in this case, A was held to be not bound by the acceptance. Now, someone read this effect of departure from prescribed manner. किसका हैंड रेज्ड है? हाँ, श्रुति. Effect of departure from prescribed manner. A departure from the manner does not itself invalidate the acceptance. A duty is cast on the offerer to reject such acceptance within reasonable time, and if he fails to do so, the contract is clinched on him and he becomes bound by the acceptance. Stop here. Now someone else explain. Not Gautami. Gautami understands everything. Someone else. Wait, let me check who I have never seen, because in every class there's invariably one person who I have never seen. Arika Tripathi I have never seen. Is that the correct pronunciation? Arika? That's Arika. Arika, sorry. Yes, Arika, explain effect of departure from prescribed manner. Arika, Here it is saying, that a departure from the manner does not of itself invalidate the acceptance, but a duty is cast on the offerer that he can reject such acceptance within reasonable time. And if he doesn't rejects it in the reasonable given time, then the contract would be clinched on him only, and he would be bound by the acceptance of that क्या बोलते हैं, acceptance of that any मतलब the offer or the agreement which is given. अच्छा, ओके. हाँ, चिरकांक्षित सही बोला ना इस बार? भैया यस भैया आई हैव अ डाउट. हाँ, पूछो. भैया पिछली स्लाइड में जो डेफिनेशन दी हुई थी उसमें कहा था दैट द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस शुड बी आइदर प्रिस्क्राइब्ड और इंडिकेटेड. तो वहाँ पे इंडिकेटेड से क्या मतलब था? इंडिकेटेड से मतलब अगेन प्रिस्क्राइब्ड ये होता है कि वो गिवन है, ठीक है, और इंडिकेटेड ये होता है कि अदर देन एनी प्रेस्क्रिप्शन देयर इज सम conduct that shows that this should be the manner of acceptance. ठीक है. अगर मतलब ये थोड़ा डाइसी एग्जांपल है, लेकिन सपोज कि किसी ने इशारा कर दिया कि लिख के भेजना हाथ से, मतलब समझ रहे हो ना, इशारों से, तो फिर वो एक इंडिकेशन हो गया. दैट्स नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड वे ऑफ सेइंग इट, बट इट्स एन इंडिकेशनल वे ऑफ सेइंग, इंडिकेटिव वे ऑफ सेइंग इट. Don't get into that much. It does not matter. If someone conveys to you and you understand that conveyance, then that prescribed manner should be followed. That's the only standard. मतलब अगर बिल्कुल ही ऐसे indecipherable वे में बोल दिया कि ये prescribed form है, तो वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं आया उसको. बिल्कुल ही नॉन ऑब्वियस वे में बोलेगा अगर कोई, तो कैसे उसको एक्सेप्ट किया जा सकता. So that's the basic distinction between a prescribed and an indicative manner of saying what the mode of the acceptance should be. Understood? Okay, Chirkankshit? Yes, भैया. हाँ, so someone explain effect of departure from prescribed manner. Okay, Gautami, you explain. Bhaiya, here it is said that a departure from the manner does not itself invalidate the acceptance. That means if it is being given in a if it is given in a different manner which has been prescribed by the offerer, will not only be will not only play a role in invalidating the acceptance, but a duty of cast of the offerer also important to finish or tarnish the contract. उसका मतलब है कि खाली ये अगर आप कोई दूसरे मोड से भेज देते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि तभी जाके वो एक्सेप्टेंस इनवैलिड हो जाएगा, बट जो कि ऑफरर है उसका भी एक ड्यूटी बनता है उस पे
उस पे अगर वो आप समझ लीजिए कि अगर उसने रीजनेबल टाइम पे ये नहीं बोला कि ही इज नॉट अग्रीइंग विद द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही वैलिड हो जाएगा, क्योंकि उसने तो अपने तरफ से कुछ इनवैलिडेट या ऐसा कुछ साइन बताया नहीं था। परफेक्ट, यही है इसका मीनिंग कि अगर सपोज प्रिस्क्राइब मैनर में आपको एक्सेप्टेंस नहीं पहुंची है, तो जो ऑफरर है उसके ऊपर ड्यूटी है ये बताने के लिए एक रीजनेबल टाइम में कि ये भाई मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि तुमने सही ढंग से नहीं बताया मुझे, तुम फिर से एक्सेप्टेंस भेजो। अगर वो रीजनेबल टाइम में अपना रिजर्वेशन एक्सप्रेस नहीं करता तो फिर ये डीम किया जाता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर। दैट इज द law on this. So a Calcutta High Court ruling has reaffirmed this, and it says that where an offerer requires the acceptance should be sent to a particular person, it has to be read in a reasonable and a sensible manner. ऐसे नहीं कि ये बिल्कुल ही absolute rule है कि अगर उसने acceptance एक mode of communication में नहीं भेजा, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको खारिज ही कर देंगे बिल्कुल ही, कि ये बिल्कुल back to square one हो जाएगा, ऐसा नहीं है। There was no violation when the offeree, instead of writing to the particular person, met him personally to communicate his acceptance. तो अगर ऑफरी लिखित वे के बजाय उससे मिलके उसको अपना एक्सेप्टेंस बोल दे, इसका ये मतलब नहीं है कि ऑफर बिल्कुल ही वॉइड हो गया, मतलब खत्म हो गया। डिफेंडेंट वाज बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस। ये रूलिंग आई थी कि एक्सेप्टेंस है ये और कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होना चाहिए। क्या डिस्टिंक्शन है इस कैलकाटा हाई कोर्ट वाले केस में और पिछले वाले केस में? किसी के मन में ये डाउट हो सकता है? हाँ ध्रुव। भैया आई हैव अ डाउट, लाइक डज इट मीन कि लाइक आपने मेरे को कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर किया और मैंने उसका कुछ सर्टेन टाइम में उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा अपने आप? लाइक मैंने रिजेक्ट भी नहीं किया बट उसको लाइक इग्नोर कर दिया। एक्सेप्ट मतलब ऑफरर ने लाइक आपने मेरे को कुछ ऑफर किया कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए और मैंने उसको रिजेक्ट नहीं किया, लाइक इग्नोर किया। नहीं वो नहीं है। इग्नोरेंस इज नॉट द सेम एज दिस। देन तो आप बैठे रहे ऑफर पे, आपने कोई ऐसा नहीं, आपने ऐसा कोई चीज नहीं बोला जो ये कन्वे करता है कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इस केस में कन्वेंस हुआ था लेकिन मोड ऑफ कन्वेंस वाज नॉट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। समझ रहे हो? ओके। नहीं, आपका ओके बहुत ही धीमा था, मैं आपको स्लोली समझा रहा हूँ थोड़ा, कि आप जो कह रहे हो उसमें वो एक्सेप्ट ही नहीं करता ऑफर को। इस केस में एक्सेप्टेंस तो है ऑफर का, लेकिन वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है, पर वो फिर भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो दैट इज नॉट द सेम एज सिटिंग ऑन द ऑफर, बीइंग नॉट एक्सप्रेसिंग इट। नो, you have to express it in some way or the other, and if you express it in the manner that is prescribed, then well and good, it has to be accepted the moment you express it in the same manner. But if you express it in a manner that is other than the prescribed manner, then the law says ki the duty is on the offerer to say that, look, you have to send it in the prescribed manner, I'm not accepting this. And if he does not say that, then the offer is deemed to be accepted after a reasonable period of time. ठीक है? एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं? यस भैया। हाँ भैया थोड़ा। हाँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। ए ने बोला कि मेरे को बुक्स खरीदने हैं, ठीक है? नहीं सॉरी, ए ने बोला मेरे को बुक्स बेचने हैं, बी ने बोला हाँ मेरे को खरीदने हैं। लेकिन ए ने जब बोला था कि मेरे को बुक्स बेचने हैं, उसने ये कहा था कि जब तू एक्सेप्टेंस अपनी देगा तब तू मेरे को पोस्टल उसमें देगा, ठीक है? लेकिन पोस्टल के बजाय उसने फोन मिला दिया ए को कि मेरे को तेरे खरीदने हैं। अब बी ने तो एक्सेप्ट कर लिया ना ऑफर को, चाहे उसने फोन से किया या पोस्टल वे में किया, उसने एक्सेप्ट तो कर लिया। अब ए के ऊपर है ये ड्यूटी कि जब वो फोन उसको आए, वो बोले उसको कि भाई ठीक है, तू बोल रहा है कि तू एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन मेरे को पोस्टल कार्ड से भेज, क्योंकि मैंने बोला था कि पोस्टल कार्ड में होना चाहिए।
ये ड्यूटी उसके ऊपर है, ऑफरर के ऊपर है, जो ऑफर करता है उसके ऊपर है ये बताने के लिए कि तू मेरे को ठीक ढंग से मेरे को अपनी एक्सेप्टेंस सिग्निफाई कर। समझे अभी? यस भैया आपने। हाँ समझ गए ना, सब क्लियर हो गया ना इस चीज पे? यस भैया। हाँ, देन कम्स टू द क्वेश्चन कि पुराने वाले केस में और इस केस में क्या डिस्टिंक्शन है। हाँ चिरकांश भैया रीजनेबल टाइम का डिस्टिंक्शन है इसमें। जब वो जाके उस पर्सन से मिला तो उसने रीजनेबल टाइम में जाके उसे कम्युनिकेट कर दिया, बट जब उसने स्पीड पोस्ट से भेजा तो स्पीड पोस्ट वैगन के बाद पहुंची, तो जो बंदा दूसरी साइड पे होगा उसे यही लगेगा कि अब ये बंदा रिवोल्ट बैक नहीं करेगा क्योंकि रीजनेबल टाइम एस्केप हो चुका है। परफेक्ट, यही है रीजनेबल टाइम का ही डिस्टिंक्शन है। जो रीजनेबल टाइम प्रिस्क्राइब था उससे ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि वैगन पहले आ गई, लेटर बाद में पहुंचा। उस बंदे ने सोचा था कि लेटर पहले पहुंचेगा वैगन बाद में आएगा, लेकिन उल्टा हो गया। तो जो ऑफरर के मन में था वो फुलफिल नहीं हुआ कि यार अब तो ये वैगन भी आ गया, इसने अपना नहीं दिया मतलब तो एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो इसलिए ये रूलिंग आई थी कि वहां पे प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन द कैलकाटा हाई कोर्ट रूलिंग देयर वाज नो नेसेसिटी ऑफ दैट because the person, the offerer did not object to this personal communication in a reasonable time. So after that reasonable time elapsed, जब ये reasonable time खत्म हो गया, उसने बोला कि मतलब लॉ कहता है कि अब ठीक है ये वैलिड एक्सेप्टेंस। तो ये क्लियर हो गया सबके मन में? भैया आई हैव अ डाउट। हाँ पूछो। भैया आई हैव एन एग्जाम्पल इन विच एक्स और वाई होते हैं। एक्स और वाई एक शेयर्स एक शेयर्स का ब्लॉक बेचने के लिए ए और बी के पास जाते हैं। एक्स ए के ऑफिस में जाता है और जो वाई होता है वो बी के ऑफिस में जाता है। एक्स जो ए होता है वो एक्स के ऑफिस में जाके बोलता है कि तुम्हारे पास तब तक का टाइम है जब तक मेरे पास फोन नहीं आ जाता। अगर बी ने हाँ कर दी तो मेरे पास फोन आ जाएगा और तुम्हारा टाइम ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे रीजनेबल टाइम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि रीजनेबल टाइम पता ही नहीं है कितना होगा। ठीक है, बट उसने एक डेफिनेशन तो दे दी ना, तो उस डेफिनेशन के बेसिस पे वो तुरंत ही बोल देगा कि मेरे को क्या करना है। दिस इज अ वेरी वैलिड वे ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन द अदर पार्टी कि तू जल्दी जल्दी बोल, अगर इसका आ गया तो मैं इसको दे दूंगा। ये वैलिड है क्योंकि रीजनेबल टाइम इज नॉट लेफ्ट टू द कोर्ट टू डिसाइड, it is defined by the offerer himself. Understood? So that is the same as a reasonable time. The only standard that is checked is whether what जो time period given है, जो कि इस केस में है कि दूसरी पार्टी जब कॉल करेगी वो that is deemed to be the standard time. और ये अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये लोग कभी कभी झूठ में भी बोल देते हैं कि देख बहुत डिमांड है इसका, तू जल्दी बोल वरना किसी और का आ जाएगा तो मैं उस और को बेच दूंगा। अंडरस्टूड? बट भैया जैसे यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं थी कि तुम्हारे पास 5 मिनट्स हैं या 10 मिनट्स हैं, बहुत सब्जेक्टिव था ना। तो सब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव मींस द मीनिंग ऑफ व्हिच कांट बी मेड सर्टेन थ्रू लॉजिक। Over here, the meaning can be made certain. In fact, reasonable time is a more ambiguous term than this, because reasonable time can be anything. But this, they are clearly saying कि दूसरे का call आ गया तो that moment पे it will be deemed to have been sold to another person and not you. Although you are right in saying that there is no numerical value to that time, because it can happen anytime. But still, that reasonable time is deemed to be a reasonable time for the purposes of our discussion. कि एक इवेंट को यूज करके टाइम रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, पर वो इवेंट कब होगा वो इनडिटर्मिनेट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो रीजनेबल टाइम नहीं है। ठीक है? क्योंकि अगर 10 दिन लगाएगा वो और वो 10 दिन तक जवाब नहीं देगा, मतलब पहले ही कर देगा ना, ए ही बोल देगा कि ठीक है तेरा जवाब नहीं है, जल्दी जल्दी बोल, मैं कर ले काम, खत्म। अंडरस्टूड? यस भैया। हाँ, देयर इज नो न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड कि कोई फॉर्मूला नहीं है इसको डिटरमिन करने के लिए। अगर कोई ऐसे स्पेसिफिक टाइम जैसे 2 days नहीं बोला गया है तो फिर कोर्ट अपना
जो सूझबूझ लगा के एक रीजनेबल टाइम अपने डिस्क्रेशन के बेसिस पे, दूसरे प्रेसिडेंट्स के बेसिस पे डिसाइड करेगा कि रीजनेबल टाइम क्या है। लेकिन अगर वो कह दे कि जिस टाइम तक दूसरे बंदे का कॉल नहीं आता, दैट इज डीम्ड टू बी द रीजनेबल टाइम, देन यस, दैट इज डीम्ड टू बी द रीजनेबल टाइम, ऑल्दो देयर इज नो न्यूमेरिकल सर्टेनिटी एज टू व्हेन इट विल बी। ओके, एनी अदर डाउट्स ऑन दिस mode of communication? Yes, bhai, I have a doubt. Who is this? Ved. Ha, Ved, yeah. Suppose I'm hearing you for the first time. Were you there last class? Yeah, I was there last class. Okay. Ved, ask. Suppose the offerer rejects the given mode of acceptance, then will the offer also lapse, or will the offer stay? The offer will stay till a reasonable time. Okay. And then the guy will be asked to send his acceptance through the prescribed manner. If he does not do that in a reasonable time, then it is deemed to be lapsed. Okay. Okay. Thank you. Any other doubts or should I move ahead? हाँ भैया, एक डाउट है। हाँ, कौन है ये? माधव। हाँ जी भैया, अगर कोई कंपनी है और उसने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया कि अपने उसे फला गुड्स बेचने हैं, और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं कि अगर जैसे कोई इंटरेस्टेड हो तो वो ईमेल करे इस ईमेल आईडी पर, और भैया उसमें नीचे हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है। तो कोई बंदा उसमें एक्स है, उसने भैया उस ईमेल आईडी पे टेक्स्ट कर दिया, और भैया कंपनी का जो ऑपरेटर था टेक्निकल, और उसने भैया वो इग्नोर कर दिया बिकॉज उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी हैं कि ईमेल पे चेक करेंगे, और उन्होंने रिजेक्ट भी नहीं किया। टेक्स्ट कर दिया मतलब? नहीं, ईमेल पे नहीं भैया, वो जो हेल्पलाइन नंबर दे रखा था ना, अच्छा, उस पे टेक्स्ट कर दिया। ओके, और आपके एग्जांपल में आप कंप्लीट करो। हाँ, तो भैया वो उन्होंने चेक नहीं किया बिकॉज उन्होंने टर्म्स दे रखे हैं कि ईमेल पे ये हम एक्सेप्ट करेंगे, तो इसलिए उन्होंने उसको कन्वे भी नहीं किया कि उसका जो एक्सेप्टेंस था उन्होंने डिनाई कर दिया है। ठीक है, तो ये वाला ऑफर में क्या होगा? आप बेसिक डिफरेंस समझो, उस ईमेल आईडी को देने के लिए और हेल्पलाइन नंबर को देने के लिए, उसमें एक बेसिक डिफरेंस है पर्पस का। हेल्पलाइन नंबर तभी होता है जब आपको कुछ सलाह या कुछ प्रॉब्लम अगर आती है तो आप पूछते हो उनसे कि हेल्पलाइन है वो, कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये कैसे होता है, क्या होता है, आप इसके बारे में बताओ। तो एक सेपरेट फोरम उन्होंने डाउट्स के लिए बना रखा है और सेपरेट फोरम उन्होंने एक्सेप्टेंस के लिए बना रखा है। और हाँ तो भैया फिर ये वो नहीं होगा ना? नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो आपको ईमेल पे ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर पे जो बंदा बैठा है, ही इज नॉट ऑथराइज्ड टू टेक ऑर्डर्स, ही इज ओनली देयर, आई मीन the presumption is that if there is a departure of that in the facts, then departure from that in the facts, then obviously हाँ चिरकांक्षी भैया, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर उस बंदे ने जिस मोड ऑफ एक्सेप्टेंस में कहा है उसमें रिवर्ट नहीं किया तो फिर उसको वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, उसे वापस रिवर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये पूछ रहा था भैया, सपोज कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा है तब एक पार्टी कहती है कि तुम मुझे पोस्ट के थ्रू रिवर्ट करोगे, बट सामने वाली पार्टी कहती है कि नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं पोस्ट के थ्रू नहीं किसी और चीज के थ्रू करूंगा। तो भैया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ही लैप्स हो गया है या फिर सिर्फ इसके ऊपर डिबेट है कि कौन से मोड ऑफ एक्सेप्टेंस से होगा? गुड क्वेश्चन। आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो गया तभी क्योंकि उसने उसका जो कंडीशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब एक्सप्लिसिटली मना कर दिया उसने। इस केस में अगर कोई दूसरे वे में एक्सेप्ट कर दे तो वो फिर भी एक्सेप्ट कर रहा है, पर वो इस केस में मना ही कर रहा है कि मैं करूंगा ही नहीं, तू जो भी कह ले मैं करूंगा ही नहीं। बट भैया उसने कॉन्ट्रैक्ट के मैटर को थोड़ी मना किया, मैटर को ठीक है कर लिया, पर उसने एक्सप्लिसिटली मना कर दिया ऑफर, मतलब प्रिस्क्राइब मोड से भेजने का। एंड इट मैटर्स, if you send it then there's a different thing that you have sent an acceptance, but in this case you have not sent an acceptance, you have disagreed with sending an acceptance in the prescribed manner. All right, yes, so it can't be said that the offer still stands because he has categorically rejected it.
when you send an acceptance through a different mode, you are not saying that I am not willing to send it through this mode. But when you are categorically rejecting the mode, then you are saying that I don't accept your terms. Okay, this is not the भैया same indemnity की class have you taken? No, I haven't explained indemnity. We are talking about the general contracts now. We are not talking about indemnity contracts. But if you have नहीं एक्चुअली जैसे कि मॉक्स में ना वो एक दो बार कई बार कॉन्ट्रैक्ट्स में इंडेमनिटी का आ चुका है, सो आई थॉट मे बी उसमें हो. इंडेमनिटी बहुत आगे है अलविरा, अभी नहीं है. अभी तो हम एक्सेप्टेंस करेंगे, फिर उसके एक्सेप्टेंस की एक और क्लास लगेगी, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो एक्सेप्टेंस पे होगा, फिर कंसिडरेशन पे होगा, देन वी विल गो ऑन टू बेलमेंट, इंडेमनिटी, ऑल ऑफ दीस स्पेसिफिक. ओके yeah भैया. But if you have any doubt, you can text me on WhatsApp and we can clarify that, because I don't want your preparation to suffer कि क्लास कब होगी और आप, क्योंकि आप ये कोई मतलब नेसेसरी नहीं है कि आपको लॉ पता होना है, आप इंडिपेंडेंटली भी चीजों को समझ सकते हैं. ओके भैया. Now I'm moving on to it's already 7:06. We've spent 1 hour. Is it okay if I spend about 30-40 minutes more today? Yes भैया. Sure भैया. Any objections? किसी को कोई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका होना जरूरी है, क्योंकि ये हम डिस्कस करने वाले क्लैट का एक क्वेश्चन जो आ रखा है 2021 में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और हर साल आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत सालों में एक्सेप्टेंस का जो है उस पे आता है क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे. ये बहुत ही बेसिक है, और जिस बुक को मैं रेफर कर रहा हूँ ये पीपीटीज बनाने के लिए, उसी बुक से क्लैट ने 2021 में क्वेश्चन बनाए. मैंने क्लास में बोला था अवतार सिंह ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, बट यू डोंट नीड टू बाय इट. फर्स्टली इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स अबाउट 1500 rupees. I mean, you would have to make that investment when you're in law school, but now it's quite heavy also. You won't know what to refer. So I am using that book and making a PPT so that you guys get to know what is necessary and what is not. तो हम देखेंगे कि क्या क्या सवाल था. तो इसके पहले कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, ये आपने बहुत बार देखा होगा मॉक्स में, नहीं? पढ़ो और बताओ, देखा है कि नहीं देखा है? यस भैया, पढ़ा है ना? तो समझाओ क्या है भैया. एक एग्जांपल दे दूं? पढ़ के पहले पढ़ो, क्योंकि मेन टेक्स्ट जरूरी है, फिर एग्जांपल देना. The communication of an acceptance is complete as against the proposer when it is put in a course of transmission to him so as to be out of power of the acceptor as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. भैया यहाँ पे लैंग्वेज है ना, अगर कोई पहली बार पढ़े तो पर समझाओ. तो भैया shall I explain now? या भैया इसमें ये कहना चाह रहा है कि जब कोई उसे कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वेस्ट आती है जिसको एक्सेप्ट करना होता है, तो जब वो अपनी एक्सेप्टेंस भेजता है, जब वो कम्युनिकेट करता है, तो जब उसकी पावर से निकल जाती है, मतलब उसकी पावर में नहीं है अपनी एक्सेप्टेंस को स्टॉप करना, तो ये होता है कि उसकी तरफ से कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है. और जब प्रपोजर की नॉलेज में आ जाता है तब उसकी तरफ से कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है. ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ. आप एग्जाम्पल बोल रहे थे, एग्जाम्पल समझाओ. भैया फॉर एग्जाम्पल इफ A and B are speaking on the phone and A is the acceptor and B is the proposer, so when A replies yes, I will agree unconditionally and unequivocally, so when he speaks on the phone he cannot take his words back, so communication from his side is completed. And when B hears it on the other side, then the contract is said to be complete because B has already heard the acceptance and A has released it. Okay, fine. Is this clear to everyone? और मैं समझाऊं इसको ज्यादा डिटेल में? Yes भैया. Okay. So like Chirkanshit said, the whole point of this section is to define कि रेवोकेशन कब नहीं हो सकता, कि कब हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पावर से हट गया है कि तुम अब रेवोक नहीं कर सकते.
So section 4 ये कहता है कि the communication of an acceptance is complete as against the proposer. Proposer यानी जो propose कर रहा है when it is put in course of transmission to him. मतलब जब जिसने एक्सेप्ट किया ऑफर को, जब वो उसको भेज देता है वो एक्सेप्टेंस, चाहे वो किसी भी मोड में हो, चाहे पोस्टल वे में हो, तो जब वो पोस्ट में डाल देता है, जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में आ गया है, उस टाइम के बाद प्रपोजर इस चीज को रिवोक नहीं कर सकता. मतलब जिसको भेजा जा रहा है वो रिवोक नहीं कर सकता. सो हैज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर. ठीक है. एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर when it comes to the knowledge of the proposer. मतलब अगर एक्सेप्टर को रिवोक करना है तो वो तब तक रिवोक कर सकता है जब तक प्रपोजर को, जिसने प्रपोज किया, उसको पता ना चले कि एक्सेप्टेंस आ गई है. समझ गए? सिंपल है अगर आप चीज को. तो रेडी हो क्वेश्चंस के लिए, बढ़ने के लिए क्वेश्चंस पे? यस भैया. ये बहुत ही मतलब डिबेटेबल क्वेश्चंस है. ठीक है. मेरे को याद है मैं एक ग्रुप में था, उसमें बहुत बहस चली थी इन सारे सवालों की, क्लैट के जस्ट बाद. तो बहुत लोग एजिटेट हो गए थे. उन्होंने वो भी करा था, ऑब्जेक्शन जो रेज करता है पैसे देके, वो भी ऑब्जेक्शन रेज करे. और बहुत डिबेटेबल क्वेश्चंस है. डिबेटेबल है या लोगों ने गलत इंटरप्रेट किया, ये आज हम देखेंगे. मेरे भी गलत हुए थे यहाँ पे, तो मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ क्वेश्चंस को 100% सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ ताकि आप प्रोसीजर समझ जाओ. लंबा पैसेज है और क्लैट के होते हैं लंबे, बट मैं ये बता दूं कि अगर आपने अवतार सिंह पढ़ी है तो आपके लिए लंबा नहीं होगा, क्योंकि ये आपको बेसिक लगेगा बहुत. और मैं जब इस पीपीटी के लिए रिसर्च कर रहा था तब ये मैंने बाय कोइंसिडेंस the exact paragraph I found out. So the point of this exercise is that कोई अलग से सवाल नहीं बनते, जो स्टैंडर्ड हैं उनसे बनते हैं. जो स्टैंडर्ड पैसेजेस हैं उनसे ही बनते हैं. आप डरो मत. अगर आपको पहले से पता है ये सारी पैसेजेस में क्या लिखा है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब जिसने पहली बार पढ़ा उसको मुझे समझाना पड़ा. लेकिन अगर आप समझ गए हो, आपको फिर से समझना जरूरी नहीं है. आप इसको थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ के भी सॉल्व कर सकते हैं. तो कोई एक बंदा पढ़ो इसको पूरा. भैया एक डाउट है. हाँ भैया आपने बोला कि इसको ऊपर ऊपर से पढ़ के भी सॉल्व कर सकते हो, बट भैया अगर इन्होंने इसमें कोई ऐसा प्रोविजन डाल दिया जो हमें पता ही ना हो, बट एग्जिस्ट करता हो, तो हमें पूरा पढ़ना जरूरी है ना? ऊपर ऊपर से जब पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने क्या नहीं पढ़ा हुआ है. इतना भी ऊपर से मत पढ़ो कि आपको पता ही नहीं लगे कि अबे ये तो नया है. ठीक है. लाइक ये वाला जो कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, ये तो स्टैंडर्ड है यार. ये तो हर मॉक में आता है, हर क्वेश्चन में आता है. ये बहुत ही कॉमन है. ये तो उड़ा ही दो, मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. बाकी पढ़ो फिर. ठीक है. जैसे मतलब मैं आपका आइडिया समझ रहा हूं. कभी कभी क्या होता है, ये लिखा होता है कि मर्डर इज नॉट अ क्राइम. एलेट में आई थिंक 2015 में या 16 में कभी तो हुआ था कि प्रिंसिपल में लिख दिया था मर्डर इज नॉट अ क्राइम. लोगों ने नॉट नहीं पढ़ा और मर्डर में लाइबल कर दिया लोगों को. उस केस में बीटी होती है, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता. तो अगर आप टाइम अगर आप बहुत शॉर्ट ऑन टाइम हो तो आप ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो उसको, अगर आपको पहले से पता है. जैसे मेरे अटेम्प्ट में मैंने वीएनएफआई का पैसेज नहीं पढ़ा था और मेरे सारे सही हो गए थे. वॉलेंटाइन अनफिट इंजूरिया का जो मैंने, याद है आपको फर्स्ट क्लास में जो भेजा था? हाँ भैया. हाँ. तो that's the whole purpose of this, to expose you to the law beforehand so that you get a basic grasp of it. हाँ. Now someone explain. Agastya or Shreya, who do I ask? Okay, Agastya. Agastya, read the whole passage. Section 4 of the Indian Contract Act 1872 reads as follows. Communication when complete. The communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. The communication of an acceptance is complete as against the proposer
when it is put in a course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor, as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. Thus, the provision makes no difference in the position of the offerer. Offerer becomes bound when a properly addressed and adequately stamped letter of acceptance is posted. The acceptor does not become bound by merely posting his acceptance. He becomes bound only when his acceptance comes to the knowledge of the proposer. The contract is concluded at the place from where the proposal is accepted and the communication of acceptance is dispatched, that is, the address at which the proposal was sent. The court at that place would have jurisdictions to entertain a cause of action under the contract. This rule that the communication of an acceptance is complete as against the proposer when the letter is posted is probably intended to apply only when the parties are at a distance and they communicate by post, where however the parties are in each other's presence or through separated in space, they are in direct communication as, for example, by telephone. No contract will arise until the offerer receives the notification of acceptance. All right. So there are a lot of ideas that are conveyed through this passage. One of them is clear about what we discussed in the previous slide. If you have understood this, you would have understood about till here. Till here you would have understood. From here on, there is a new thing. We are talking about the place at which it is being done. So someone read this line and explain place के बारे में क्या बोला गया. गौतमी, आप साइलेंट हो थोड़ा रिलेटिवली, आज मैं आपको बोलने नहीं दे रहा हूं, आप एक्सप्लेन करो. या कोई और एक्सेप्ट फॉर अगस्त्या, क्योंकि अगस्त्या ने ढंग से पढ़ा है तो उसके मन में क्लियर होगा. इसने नहीं पढ़ा वो करो. ओके श्रुति, यू एक्सप्लेन. तो भैया आई थिंक दैट इज सेइंग दैट जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वहीं से कंक्लूड होगा जहाँ से वो डिस्पोज हुआ था, मतलब जहाँ से उसका प्रपोजल निकला था एंड जहाँ पे उसकी एक्सेप्टेंस का मतलब गया था. तो ये दो प्लेसेस पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा. Okay. The contract is concluded at the place from where the proposal is accepted and communication of acceptance is dispatched. That is the address at which the proposal was sent. Okay. अब jurisdiction के बारे में कोई पढ़ो और एक्सप्लेन करो क्या है jurisdiction, होता क्या है. पहले वो सबको पता नहीं होगा, मेरे को पता है इस क्लास में, और जो कि बहुत डेंजरस बात है, लेकिन होते हैं हर क्लास में कुछ लोगों को नहीं. हाँ भैया आई हैव अ डाउट. भैया यहाँ पे जुरिस्डिक्शन का कह रखा है, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में मैं एक्सप्लिसिटली स्टेट कर दूं कि जुरिस्डिक्शन इस सिटी में कवर होगा, तो फिर जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो तो रेलेवेंट हो जाता है ना. यस, यू आर राइट. तो अगर आपने रेंटल अग्रीमेंट्स देखे हैं, अगर आप रेंट पे रहते हो फॉर एग्जांपल, तो रेंटल अग्रीमेंट्स में ये लिखा होता है कि इफ सम डिस्प्यूट अराइजेस देन द jurisdiction will be of, let's say, Delhi court. Even if you're residing in Gurgaon, the house is in Gurgaon, but if you say that the jurisdiction will be of the Delhi court, then the Delhi court will have jurisdiction. But even then there are complications with that. We'll get to that in the questions. Question है इस पे. अच्छा है चिरकांक्षित, आपने अच्छा क्वेश्चन रेज किया, बट उसका आंसर हमको बाद में मिल जाएगा. किसी ने वो इवेंट कवर किया है मतलब जीके वगैरह में कि सीट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होता है? पढ़ा है सीट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में? बहुत न्यूज में था अभी भैया. वो हाँ सुना है भैया, वो नीदरलैंड्स में है ना कुछ. क्या नीदरलैंड्स में है ना? नहीं, जो अभी नीदरलैंड्स में है, सिंगापुर में भी है, जो अभी अमेज़न वाला जो केस हुआ था. अभी अमेज़न का मैंने पढ़ा नहीं है एक्चुअली, मेरे को पढ़ना है यार, वो याद अच्छा किया तो नहीं याद दिला दिया. बट आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि जो पार्टीज होते हैं
वो डिसाइड कर देते हैं कि सिंगापुर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन विल हैव jurisdiction over this. तो दो इंडियन ये पार्टीज आपका है। वॉइस लैग कर रहा है। अब ठीक है? हाँ जी भैया। हाँ, तो आर्बिट्रेशन वाले केसेस में क्या होता है, मैं आपको रिलेटेड चीजें बताते जा रहा हूँ ताकि आपका नॉलेज भी इंक्रीज हो जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, या मतलब मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा, मैं रिलेटेड चीज बोल। तो आर्बिट्रेशन में क्या होता है, पार्टीज डिसाइड कर देते पहले से कि कौन से कोर्ट का जुरिसडिक्शन होगा। अगर, और ये बहुत इंडियन कोर्ट्स को ये यूजुअली अच्छा नहीं लगता कि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इंडिया का सब्जेक्ट मैटर है, इंडिया के लॉज अप्लाई होने चाहिए इसलिए। लेकिन पार्टीज अगर चाहें तो आर्बिट्रेशन के थ्रू वो दूसरे कंट्री के लॉज अप्लाई करवा सकते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है, जो जनरल रूल है कि जुरिसडिक्शन कहाँ लाई करती है वो हट जाता है, और जिस कंट्री के लॉज ये लोग अप्लाई करवाना चाहते हैं उस कंट्री के लॉज अप्लाई होते हैं। तो चिरकांक्षित का डाउट अभी थोड़ा ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि वेदर द will of the parties overrides the general law on contract or not. The simple answer is yes. ठीक है? प्लेस के बारे में हो गया। हाँ, jurisdiction किसी को समझाना था, समझा jurisdiction का मतलब क्या होता है? भैया कोई भी लीगल पावर। हाँ श्रुति, तुम ही बोलो, सॉरी। हाँ श्रुति से। यस भैया, आई वाज सेइंग कि कोई भी लीगल पावर जो किसी अथॉरिटी के थ्रू दी जाए। लीगल पावर ऑफ एन अथॉरिटी। सो इन दिस केस व्हाट लीगल पावर, अगस्त्या? Legal power as in the ambit, the jurisdiction means the ambit. Yeah, ambit of whom in this case? Chirkanchit, you say? No, bhaiya, I wanted to explain the jurisdiction part. Explain. Bhaiya, jurisdiction means the power held by the competent court to decide the matters in any given territory. Okay, good. यही है कि कोर्ट के पास अथॉरिटी है इस मुकदमे को चलाने की या नहीं, वो इस मुकदमे को सुन सकता है या नहीं। और ये उस जगह पे होता है केसेस में जहां पे ये है कि contract is concluded at that place from where the proposal is accepted and communication of acceptance is dispatched, that is the address at which the proposal was sent. ठीक है? This rule that the communication of acceptance is complete as against the proposer when the letter is posted is probably intended to apply only when the parties are at a distance and they communicate by post. मतलब ये तभी होता है जब कोई डिस्टेंस है। अगर सेम सिटी में है तो कोई मतलब नहीं उस चीज का, क्योंकि सेम जुरिसडिक्शन ही होगा। पर अगर अलग सिटीज में है और उनको पोस्ट के थ्रू ही कम्युनिकेट करने का अपॉर्चुनिटी है, जैसे ईमेल वगैरह के पहले पोस्ट से ही होता था सब कुछ, तो उन केसेस में ये रूल अप्लाई करता है, क्योंकि रूल अप्लाई करवाना जरूरी है। तब फर्क पड़ता है कि कौन कहां पे रहता है। Where, however, the parties are in each other's presence or through a separated space, they are in direct communication, for example by telephone, no contract will arise until the offerer receives the notification of the acceptance. मतलब साथ के साथ इंस्टेंटेनियसली। फोन पे क्या है, फोन पे तो पता ही लग रहा है डायरेक्टली ना कि एक्सेप्ट हो गया, तो कोई गैप नहीं है कम्युनिकेशन में, तुरंत पता लग जाता है कि क्या बोल रहा है आदमी। बहुत ही कम गैप होता है, बिल्कुल मिनिस्क्यूल टाइम, नैनो सेकेंड्स का गैप होता है जब आप बोलते हो और अब दूसरा बंदा रिसीव करता है फोन पे। तो अब हम क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। ठीक है, आज हम 5 के 5 सॉल्व कर पाएंगे या नहीं पता। थोड़ा ब्रेक दे दूं तुमको 5 मिनट्स का क्वेश्चंस के पहले, या साथ के साथ ही करना? ब्रेक चाहिए? कर लीजिए भैया ब्रेक चाहिए थोड़ा। हाँ ब्रेक चाहिए ना, हैवी हो गया ना क्लास आज थोड़ा। हाँ थोड़ा सा हैवी हो गया। ब्रेक ले लो फिर। हाँ मैं 7:30 पे आता हूँ, ठीक है? 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो। ठीक है भैया। भैया वो पिछले वाली स्लाइड को लगा दीजिए ना, एक बार फिर से उसको पढ़ना है। ओके जी, इसको ना? हाँ भैया। ओके, 1 मिनट।
सब रेडी हो? जी भैया। जी भैया। ओके ओके, पढ़ लिया क्वेश्चन 5 ये जो है पैसेज ढंग से पढ़ लिया? हाँ भैया। ओके चलो पढ़ो ये क्वेश्चन को। हाँ गौतमी पढ़ो। Part A. S wanted to purchase shares of a company and communicated his offer to buy shares on March 1st, 2021. A letter of allotment of shares addressed to S, which is an acceptance of the offer to purchase share, was posted by the company on March 10, 2021. But the letter never reached S and was lost in transit. In the given situation, which of the following statement is true? Shall I read the options? Yeah. A. Communications of acceptance is not completed against S and hence there is no valid contract between S and the company. Communication of acceptance is completed as against S, however not complete against the company. Communication of acceptance is completed against the company, however not completed against S. Communication of acceptance is completed against S as well as the company. ओके समझ आया क्वेश्चन सबको या समझाना पड़ेगा ये क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन समझा दो अगर समझ आ गया तुमको तो। गौतमी नहीं, गौतमी ने पढ़ा है। हाँ चिरकांक्षित, चिरकांक्षित तुम फ्रेशर हो ना, पहली बार दोगे मतलब 22 में? यस भैया। हाँ तो आप मतलब मोस्ट लाइकली आपने ये सॉल्व नहीं किया है, तो समझाओ क्या चल रहा है। Bhaiya, in the question is that S wants to purchase shares, so he communicated about his offer to the company. And he wrote a letter to it, and he wrote that on March 2021. So the company accepted the offer and wrote an acceptance to him on March 10, 2021, but the letter never reached him and was lost. So in the given situation, we have to decide which of the following statement will be true in context to the. Before you do that, identify who the offerer and the offeree is. Very basic question. Bhaiya, S is the offerer. Okay. And who is the offeree? The company. Company. Okay. Fine. Now that we've identified who the offerer and the offeree is, apply the law that I've told you about when it is complete as against whom, and decide from the 4 options. And give me your reasoning. Not you Chirkankshit, sorry. Anyone else? Geetika hasn't spoken much today. Geetika, say. Bhaiya, it's kind of a dicey question because option A and option C both are, from my point of view, are correct, because communication of an acceptance is not complete because S has not received the letter, so उसके point पर communication complete नहीं हुआ है, तो ये valid contract नहीं होगा. And ऑप्शन सी सेज द सेम कि कंपनी के पार्ट पे तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एस के पार्ट पे कंप्लीट नहीं हुआ है. दोनों एक साथ सही कैसे हो सकता है गीतिका? दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता है, बट भैया इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूज हो रहा. ओके, हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन. गुड. कंफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट. इन केसेस में जब आप कंफ्यूज होते हो, आपको पैसेज को देखना पड़ेगा, ठीक है, और आपको ये फिर से पढ़ना पड़ेगा कि द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made. Communication is complete as against the proposer. Okay, communication of acceptance is complete as against the proposer when it is put in a course of transmission to him. Proposer कौन है इस केस में? S. उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट हुआ? उसके अगेंस्ट कंप्लीट नहीं हुआ भैया. नहीं, it says ना when it is put in a course of transmission to him. अच्छा, हाँ. So as to be out of the power of. हाँ.
जब उसने अपना प्रपोजल डाला तो उसने अपना ऑफर कन्वे कर दिया था, एंड बट द एक्सेप्टेंस वाज नेवर came into communication or never received by him. You are not getting the very simple sentence. कोई समझाओ ये क्या है, फिर से समझाना पड़ेगा क्योंकि वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इसको. कोई है? वेद रेज्ड हिज हैंड. हाँ वेद. भैया, according to the principle, the answer should be D. Wait, According to the principle. Don't jump. First explain when it is out, like when it is complete as against the proposer, who is S in this case. Yes, bhaiya. When the offerer, that is S, he signified his proposal to the company, and when the proposal was reached to the company, and when the company got to know about the proposal, then his communication was completed as against the company. Not got to know. When the company company posted it on March 10. No, bhaiya, as against the company. When No. Read no, the when the passage. proposal reached the company. As against the proposer. I'm asking proposer, not the company. Okay, proposer. Then once the company put into course of transmission, they accepted. And when does that happen? The proposal was complete as soon as they on March 10th. Posted, on March 10th. Correct. Okay. Yes. So yes, it says that the communication. Wait. As against the proposer. So as against S, it is complete when it is put into the course of transmission. Put in the course of the transmission. So has to be out of the power of the acceptor. Acceptor, yes. Okay. Communication of acceptance is not complete as against. Eliminate A. Yes. Eliminate A summarily because it is put into the course of transmission of it. Yes. Dikka, now you understood कि हमने कैसे reject किया है को. हाँ भैया. नहीं हाँ कॉन्फिडेंटली बोलो. आप समझाओ अभी कैसे. यहाँ पे जाके कंपनी ने ट्रांसमिशन में डाल दिया था तो एज एन वो चीज एक्सेप्टेंस के क्या बोलते हैं एम्बिट में आ जाए. Okay. Good. So we rejected B. Now, A. Sorry, we rejected A. Now let's come to B. Communication of acceptance is complete as against S, however, not complete as against the company. Now let's check when does the company's acceptance get completed. Someone read this part. ये वाला पार्ट पढ़ो. As against, हाँ पढ़ो. As against the acceptor when it comes to knowledge of the provider, यानी जब कंपनी के थ्रू वो एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट होगा जब एस की नॉलेज में आ जाएगा. तो समझ गए. तो इस केस में ये लेटर पहुंचा नहीं एस को तो नहीं हुई एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट द कंपनी. ठीक है. एज अगेंस्ट द कंपनी. एज अगेंस्ट का मतलब समझ आया किसी को? एज अगेंस्ट का मतलब क्या है? कंफ्यूज हो गई थी इसलिए उसने उल्टा कर दिया. ठीक है. श्रुति आप समझाओ एज अगेंस्ट का मतलब क्या है?
भैया उस केस में ये कह रहा था, मतलब जो लाइन अभी आपने हाईलाइट की थी उसमें ये कह रहा है कि कंपनी के साइड से मतलब सॉरी कंपनी ये मानेगी कि एस ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जब उसे ये पता चल जाएगा कि प्रपोजल उस तक पहुंच चुका है, तो एज अगेंस्ट कंपनी। तो वो रेवोकेशन तब तक कर सकता है जब तक प्रपोजल को नॉलेज ना हो कि एक्सेप्ट हो गया ऑफर, राइट? इसका मतलब एज अगेंस्ट का ये मतलब है सिंपल कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी द एक्सेप्टेंस इज ओवर द मोमेंट the proposer gets to know of the offer, and since in this case the letter never reached us, so it could not be completed. Therefore B is the right answer. Does anyone disagree with this? You understood the process of solving the question. What did you understand from the process of solving? How do you solve a question on legal reasoning? Bhaiya, I have a doubt. Yeah, Ved, ask. Doesn't it mention in the principle that the communication of the acceptance is complete once the letter is posted in the course of transmission? As against whom? But as against the offerer. As against the offerer. So offerer in this case as is against S. Yes. So then the company also posted the letter. We are saying that. However, it is not complete as against the company. Okay, Bhaiya, but then they posted the letter of the acceptance, right? But the standard for the company is knowledge, not posting. Posting is the standard for S. Okay. कि S तब तक as against means, it's very necessary to understand what as against means. As against means कि till the time the company does not send its acceptance, S can revoke his demand for shares. The moment they post it, he can't revoke it. But the company can revoke it till the time S gets to know that the offer has been accepted. That is the basic answer. Okay. Understood, Ved? Ved, you only decided, yeah, right? You only figured. The thing is, you guys, when you read it, you are able to understand, but you are not able to internalize it. जब मैंने ये पढ़ाया आपसे एक एक करके, तब आप तो समझ गए, इसीलिए मैंने बोला पढ़ना जरूरी है फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. But you are not able to internalize what this means. Has anyone understood what this means? And explain your understanding to everyone. हाँ गीतिका. Bhaiya, can you also please explain the option A and the like the reason behind its elimination? Okay. Communication of acceptance is not complete as against S. This is not true because the standard for acceptance, communication of acceptance to be complete as against the offerer. Offerer S है ना, वो खरीदना चाहता है shares. तो उसका जो standard है, that is when the company posts it. That's why I said 10th March. 10th March में कंपनी ने भेज दिया ऑफर, ठीक है? तो उस मोमेंट पे ए रिवोक नहीं कर सकता ऑफर. उसके बाद जब पोस्ट कर दिया तब एस रिवोक नहीं कर सकता. तो इसलिए उसके अगेंस्ट कंप्लीट हो गया कम्युनिकेशन. बट इट्स दिस ऑप्शन सेज दैट इट इज नॉट कंप्लीट, सो इट इज रॉन्ग. सो वी एलिमिनेट ए. ऑलराइट. Yes, sir. Okay. हाँ गीतिका, you had any doubt or what? Do you want to contribute something? भैया आई गेस कि जब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए तो जब पैसेज में दोबारा जाएंगे तो उसका जो कीवर्ड्स हैं उससे शायद आंसर इन्फर कर पाएंगे, क्योंकि उसमें प्रपोजल और एक्सेप्टर दिया है तो उसके थ्रू निकल जाएगा. फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना था कि ऑफरर ऑफरी कौन है. बहुत लोग उसी में कंफ्यूज हैं, क्योंकि यूजुअली क्या लगता है हमको कि जो बड़ा वाला पार्टी होता है वो ऑफरर होता है यूजुअली, बट ऐसा नहीं है. जो डिमांड करता है वही ऑफरर है. हमने पहले वाले लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था. तो एस इज द ऑफरर, कंपनी इज द ऑफरी. एज अगेंस्ट द ऑफरर द स्टैंडर्ड इज व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन. जब ट्रांसमिशन में कंपनी भेज देती है उसके बाद एस रिवोक नहीं कर सकता ऑफर को.
तो communication of acceptance as against S is completed. Therefore, we reject A. But it is not complete as against the company, because the standard from the company's perspective is that when S gets to know of it, S hasn't got to know of it. Hence, it is not complete as against the company. कि कंपनी अभी भी रिवोक कर सकता है क्योंकि अभी पता नहीं है एस को. ठीक है. Therefore, communication of acceptance is complete against S, but it is not complete against the company. Are you still facing any difficulty in this? I will continue with this. नहीं भैया. समझ गए सारे? तो कोई और समझा मुझे. प्रयास तुम समझाओ. तुम बोल नहीं रहे, तुम क्लास अटेंड करते हो लेकिन बोलते नहीं. हाँ भैया. समझाओ कि क्या है. भैया बी ऑप्शन वाला. ये ऑप्शन तो हुआ, वो मैंने बता दिया, पर कैसे? भैया जैसे पैसेज में बोला गया है कि कंपनी ने एक्सेप्ट तो कर लिया है, मतलब उसको पोस्ट कर दिया है कि आप ले सकते हैं, लेकिन जब तक वो पोस्ट एक्सेप्ट मतलब जो एक्सेप्ट करने वाला होता है उसके पास पहुंचेगा नहीं, तब तक के लिए कंपनी रिवोक कर सकता है उस एक्सेप्ट करने वाले तक को पहुंचता नहीं है कि ऑफर करने वाले को पहुंचता है? ऑफर करने वाले को, मतलब जो हाँ, तो तब तक कंपनी रिवोक कर सकता है उससे, मतलब. ठीक है, परफेक्ट. तो समझ गया. ऑप्शन बी. एनी डिसएग्रीमेंट्स विद दिस आंसर की? ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ का शायद सबसे ज्यादा घुमाने वाला टॉपिक है. ये इतना इजीली लोगों को ग्रास्प नहीं होता है. तो आई अंडरस्टैंड इफ यू डोंट ग्रास्प इट. पॉइंट इज टू प्रैक्टिस इट, कि आप इसको इतनी बार पढ़ लो कि आपके अंदर इंटरनलाइज हो जाए कि कौन कब तक एक्सेप्ट या रिवोक कर सकता है. दिस इज द ओनली गेम दैट इज रिक्वायर्ड. आगे के क्वेश्चंस में अभी ये अंडरस्टैंडिंग हमको हेल्प करेगा. पार्ट बी कोई पढ़ो. यस श्रेया. हाँ भैया. A, who is in Mumbai, makes an offer for supply of goods to B, who is in Delhi, via a mobile phone call. During the same call, A's offer is absolutely and unconditionally accepted by B. According to the terms and agreed between A and B, goods are to be supplied at Pune and payment is to be made electronically. In the given situation, where is the contract concluded? Okay. भैया options में? हाँ, पढ़ो options. Option A, neither Mumbai, Delhi or Pune, as it is a telephonic contract. Option B, Pune, C, Delhi, and D, Mumbai. Okay. Does the passage talk about telephonic contracts? Did it? You guys read the passage. Did it talk about it? No. No, bhaiya. No? You sure? Then Yes, bhaiya. what about this? This whole. Bhaiya, but states that it will be accepted if the notification of acceptance is received by the offerer. Now read this. What do you mean by this? हाँ, गौतमी को नहीं सुना थोड़ी देर से. हाँ गौतम. The contract is concluded at the place from where the proposal is accepted and the communication of acceptance is dispatched. इसका मतलब है कि हम उस जगह पे कह सकते हैं जहाँ, मतलब उस जगह को कह सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है जहाँ से प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है. मतलब अगर उस केस में आई नीड टू गो बैक टू द क्वेश्चन बैक, बट उसमें जहाँ पे भी प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है, I'm accept. हाँ. Should I go back to the question now? Yeah, please. Okay.
The address at which the proposal was sent. So I think वो मुंबई में है और उसने दिल्ली भेजा था कुछ उस दिल्ली में तो proposal को। इंक्लूड होगा ना। तो वहां पे दिल्ली पे एक्सेप्ट हुआ है और जो प्रपोजल सेंड किया गया था वो भी दिल्ली ही था, तो आई थिंक प्रपोजल जो है वो दिल्ली पे एक्सेप्ट हुआ है। Okay. A, who is in Mumbai, makes an offer for supply of goods to B, who is in Delhi, who is in via Delhi. mobile phone. Okay. During the same call, A's offer is absolutely and unconditionally accepted by B. According to the terms agreed between A and B, goods are to be supplied at Pune and payment is to be made electronically. In the given situation, where is the contract concluded? Okay. Offerer मुंबई में है, ऑफरी दिल्ली में है, ठीक है, ये है क्लियर। Contract is concluded at the place from where the proposal is accepted. ठीक है, i.e. the address at which the proposal was sent. Okay, where was the address at which the proposal was sent? Delhi. Okay. Proposal was sent. All right. So Delhi is the place where the proposal was sent. Yes. Okay. So where is the contract concluded? Delhi. Delhi itself. Where Delhi? Simple question. सिंपल क्वेश्चन हो गया? यस भैया। भैया मेरे को अपोज करना है इसको। क्या करना है? नहीं, मैं एग्री नहीं कर रही, क्योंकि आप पैसेज पे दोबारा जाइए। हाँ। लास्ट 6 लाइन में देखिए, दिस रूल के बाद उसमें लिखा हुआ है कि दिस रूल दैट द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन द लेटर इज पोस्टेड इज प्रोबेबली इंटेंडेड टू अप्लाई ओनली व्हेन द पार्टीज आर एट डिस्टेंस एंड दे कम्युनिकेट बाय पोस्ट, नॉट बाय इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये चीज तब ही अप्लाई होगी जब वो पोस्ट के थ्रू करता है, बट हियर तो इलेक्ट्रॉनिकली हुआ था, तो आई गेस फर्स्ट ऑप्शन इज should be the answer. Neither Mumbai, Delhi nor Pune, as it's a telephonic contract. But where does it say that there is no place where it happens? भैया उसमें explicitly दिया गया है ना कि by post, only by post, when the parties are at distance and they communicate by post. Okay. No, but it says where, however, the parties are in each other's presence or through separated in space. ठीक है, ये पोस्ट वाला रूल तब अप्लाई नहीं करेगा जब वो एक दूसरे के प्रेजेंस में है और सेपरेटेड बाय स्पेस है। दे आर इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल बाय टेलीफोन, नो कॉन्ट्रैक्ट विल अराइज अंटिल द ऑफरर रिसीव्स द नोटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो एक जगह है ना जहां पे ये एक्सेप्टेंस होगा ऑफर, समझ रहे हो? This rule does not apply to in person, but this says that no contract will arise until the offerer receives the notification of acceptance. Where is the notification of acceptance received? That's the main question. It is received in Delhi. The notification of acceptance is received in Delhi. Why this is not applicable in places where you are meeting person to person, that is because the notification of acceptance is there at the same place. Over here it's at different places. Therefore you have to read this and not the entire thing. But again, इसमें भी difficulties हैं जो arise करती। इसका जो आंसर की में फर्स्ट आंसर की में आंसर है ये डी है, मुंबई है, जो कि गलत है। शायद उन्होंने करेक्ट किया था या नहीं किया था, लेकिन सबका मानना है कि ये डी है, सॉरी सी है। ए भी हो सकता है, जैसे
गीतिका ने जो रीजनिंग दी वो भी ठीक है, मतलब कि वो अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन ओवरऑल ये सी होना चाहिए। लेकिन आंसर इसका दिया था डी। क्वेश्चन एक्चुअली ये गलत है, बट इसका आंसर डी दिया गया था। मेरे को लगता है सी है, सबने अग्री किया सी है, गौतमी कह रही है ए है। तो ये मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था, ये उन वाले क्वेश्चंस में से जो जिसपे बहुत डिबेट हुआ था। बट मेरे को तो सिंपली सी लगा था और मेजॉरिटी लोगों को सी लगा था, लेकिन आंसर डी दिया गया था और हुआ ए, मतलब गीतिका ने ए बोला। अंडरस्टूड? ये उन डिबेटेबल क्वेश्चंस में से है। Geetika's reasoning is decent. I mean, I'm not disagreeing with it, but since it says that no contract will arise until the offerer receives the notification of acceptance, this says that it is not instantaneous always. You have to consider when the notification is received by the offeree, and that happens in Delhi in this case. Are you still in doubt, Geetika? You disagree with me? Even I disagree. I mean, this question is a little bit dicey. This question is dicey because I'll show you the CLAT 2020 answer key. Sorry, 2021 answer key. भैया आंसर शीट में डी दिया हुआ था। हाँ, तो उसका रीजनिंग कुछ बताया पर था? नहीं, कोई रीजनिंग नहीं, कोई रीजनिंग नहीं। ओके भाई। भाई डी आंसर क्यों है? मेरे को भी नहीं पता भाई। भाई मेरा भी गलत हुआ था ये। हाँ, बहुत लोगों का गलत हुआ था। ये सबसे मुश्किल था ना पैसेज, वैसे मेरे को लगा था कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुई थी इसमें। पर आंसर डी दिया गया, बट आप लॉजिक अप्लाई करो तो डी नहीं है। सी और ए में कंफ्यूजन हो सकता है। गीतिका इज राइट, ए भी एक वैलिड आंसर हो सकता है, बट इसका आंसर डी दिया गया। होता है, क्लैट है भाई ये। हाँ भैया थी कुछ क्वेश्चंस में, मतलब 4-5 क्वेश्चन थे इनमें हाँ, लगे थे मेरे को लग रहा। बट मेरा मानना सी है, गीतिका का मानना ए है। दोनों बहुत ही क्लोज है, बट आंसर हम दोनों का नहीं, समझ रहे हो? हाँ जी भैया। बट आपने लॉ पढ़ा, आप लॉ समझ रहे हो और उसको अप्लाई कर रहे हो। एक आधा तो एक्सेप्शन हो जाता है ये क्वेश्चन। क्या एक्सेप्शन हो जाता है भाई एक आधा क्वेश्चन तो? हाँ, हो जाता है, क्योंकि क्लैट वाले रीजनिंग थोड़ी देते हैं। वो तो बोल देते हैं आंसर ये है, बट वी हैव टू ऑपरेट ऑन द अजम्पशन दैट दे गिव प्रॉपर क्वेश्चंस। सो वी विल सी पार्ट सी नाउ। भैया मैं इसमें कुछ बोल सकती हूँ? हाँ, ये जो सेकंड वाला है, like I have been, मैंने टाइप किया and I got something, so it's written over here that it's called mailbox rule, in which it has been said that properly addressed and dispatched acceptances can become effectiveness when they are dispatched, even if they are so it's actually it's written over here that the time it is being said that which question are you talking about? this B1, which place at his as like it's being accepted. हाँ, It could be that reasonably believe that binding of a contract was created when the acceptance was dispatched. When the acceptance was given, that's the time when the contract is made. So the place where the acceptance has been done, that will be the place where the contract is being. So that's Delhi, right? That's Delhi, yes. Actually, I think it's written here also. It's written mailbox rule. So I think उससे शायद कुछ वो मेल और पोस्ट का कंफ्यूजन हो गया होगा, but it's written here mailbox rule. So I agree. It's debatable. I mean, but जैसे कि 3 आंसर्स हमारे पास आए आज, और एक तो बिल्कुल विदाउट रीजन है मेरे हिसाब से, और आपके भी हिसाब से आई थिंक मुंबई तो कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, बट आपने देखा ना आंसर की? और पॉसिबल है भैया। कैसे? क्लैट कंसोर्टियम। हाँ, क्लैट कंसोर्टियम।
भाई क्वांट याद है तुमको? क्वांट, हाँ जी क्वांटिटेटिव, भैया, हाँ जी भैया। इसमें कितने सारे मिस्टेक्स थे और उन्होंने कुछ करेक्ट नहीं ये पूरा वो ही दे दिया, केसलेट्स ही दे दिया उन्होंने। जो दिया वो ठीक है, हाँ जो वो देना चल है दे ठीक है, दो, हाँ जी बट ठीक तो दो ना। भाई। लेकिन भैया जो जीके थी उसका कुछ भी मतलब वो नहीं था कि कुछ मतलब बहुत ज्यादा वियर्ड थी जीके। वियर्ड थी, ठीक है, वियर्ड इज ओके, वियर्ड तो वो उनका राइट है, लेकिन नहीं नहीं सवाल भैया, ठीक होना चाहिए। कहीं से भी मतलब कोई भी कह रहे हैं कि कब किसको अवार्ड मिला था पीस प्राइज, मतलब उस ईयर में, ऐसे थोड़ा ना याद रहता भैया सबको। भैया तो फिर एंड में मार्क्स किसको मिले? लाइक जिसने दिल्ली लिखा या मुंबई लिखा या मतलब जिसने मुंबई लिखा उसी को मिला होगा। वेट, मैं फाइनल ऑफिशियल। आंसर की देखूं? यस भैया। करेक्ट नहीं किया, वही आंसर रहा, डी, मुंबई। हाँ जी भैया, मेरे को भी यही याद था हाँ, कि सही नहीं करा था उन्होंने। कुछ करेक्ट नहीं किया उन्होंने। उन्होंने बहुत कम क्वेश्चन में करेक्ट करा था भैया, एक या दो क्वेश्चन थी बस। भैया अभी और अच्छा, कितनी लोग देर क्या कर क्लास सकते हैं? लेंगे? हाँ, अभी और कितनी देर क्लास लेंगे आप? It's 20 already minutes. okay. Let's just finish this set. 3 more questions are left. Okay. Yeah, fine. Or should I give this for homework? भैया डिस्कस ही कर लेते हैं। Okay, कर लेते वैसे भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हाँ हाँ गीति, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, अब भी नहीं आ रही ढंग से। नहीं, मतलब आप टाइप कर दो या व्हाट्सएप मेरे को वॉइस नोट भेज दो, मैं सुना दूंगा क्लास में। हाँ ठीक है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, पढ़ो कोई, जल्दी करो यार, बहुत टाइम हो गया है एक्चुअली, 2 घंटे ऑलमोस्ट। वार्तिका तिवारी, रीड इट। Bhaiya, am I audible? Yeah. X, who is in Gandhinagar, makes an offer for sale of second-hand luxury car to Y, who is in Jammu, via an email sent on January 15, 2021 at 2:03 p.m. X offer is absolutely and unconditionally accepted by Y via an email sent on January 15, 2021 at 4:04 p.m. The email communicating acceptance is read by X on January 15, 2021 at 7:05 p.m. in the given situation when is the contract concluded? Okay, this is very similar to the first question. X, who is in Gandhinagar, makes an offer for sale, who is at Jammu, via an email on January 15th, 2021 at 2:03 p.m. Okay. X makes an offer. X is the offerer. Y is the offeree. X sends his offer on 15 January 2021 at 2:03. X's offer is absolutely and unconditionally accepted by Y via an email on January 15 at 4:04 p.m. Okay. Email communicating acceptance read by X on January 15, 7 p.m. in the given situation when is the contract concluded. As against X on January 15th, 4:04, as against Y at 7 p.m. Okay, so मैं जल्दी आंसर बता रहा हूँ, टाइम कम है अभी, मतलब ज्यादा टाइम खिंच गया अभी। तो ऑफर X करता है
15 जनवरी को, पर उसकी एक्सेप्टेंस उसको पता लगती है, एक मिनट, as against X on January 15th, 2021 at 4:04 p.m. So as against the offerer, it is concluded at 4:04 p.m. because Y sends the email at that time. But as against the offeree, it is completed by at the time when it is in the knowledge of the offerer. So as against Y, it is completed at 7 p.m. So 7:05 p.m. So A is the right answer. Understood? फर्स्ट क्वेश्चन का ही एक एक्सटेंशन है, सेम लॉजिक अप्लाई होगा। भैया एक डाउट है। हाँ भैया, अगर हम ए को कंसिडर करें तो वो सिर्फ एक्सेप्ट, वो कंप्लीशन नहीं हुई, सिर्फ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं हुआ, सिर्फ एक्सेप्टेंस। हाँ, मेरे को भी वही डाउट है। एग्जैक्टली भैया, मुझे भी डी लग रहा है, तो डी नहीं होगा। मेरे को भी डी लग रहा है। हाँ, मैंने भी डी मार्क करा था, मैंने भी डी मार्क करा। वो गलत है? गलत है। मैं बताता हूँ क्यों। अब मैं ये ठीक है, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड फ्रॉम हुज एंड। ओवरऑल तो इट्स कंक्लूडेड एट 7:05 p.m. but it is asking you to identify at which point whose contractual obligations were, matlab whose acceptance was completed. That's the actual question, but they have said that it's contract concluded with it. Overall it is concluded at 7:05 p.m. right? सब कुछ होके तो 7:05 पे हुआ खत्म, बट मैंने भी डी मार्क करा था। मैं आप अपना आंसर की भी, मतलब मैंने जो आंसर्स मार्क किए वो मैंने सेव करके, मतलब एक फोल्डर में डाल रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने भी डी मार्क करा था, पर गलत है, बट क्या कर सकते हैं। ओवरऑल तो अगस्त्य का लॉजिक सही है कि डी सेज दैट ओवरऑल कंक्लूड, कॉन्ट्रैक्ट तभी कंक्लूड हुआ जब दोनों चीजें फुलफिल हो गई, और दोनों चीजें 7:05 पे फुलफिल हुई थी। बट सिंस दे आर सेइंग एज अगेंस्ट, आपको अलग से देखना पड़ रहा है इस केस में। दिखा देते हो वापस से जस्टिफाई कर दीजिए भैया, प्लीज। भैया ये आपने कौन सी बुक कहा था स्टार्ट में, आपने कौन सी बुक से रेफर, पार्डन फिर से? अवतार सिंह। अवतार सिंह, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। सही है, कुछ चेंज नहीं किया कंसोर्शियम में, बट डी होना, मेरे को भी डी लग रहा है यार। मैं पावरलेस फील कर रहा हूं तुम्हारे सामने दोनों केसेस में जो हमने डिस्कस किया, क्योंकि कंसोर्शियम इज नॉट रेडी टू चेंज इट। देन ये तो उन्होंने तो कोई रीजनिंग नहीं दी, तो हम अपने रीजनिंग के हिसाब से करेंगे यार। ये एग्जाम ही ऐसा है यार, मैं ऑनेस्टली क्या ही बोलूं यार, एग्जाम ही ऐसा है, वो रीजनिंग नहीं देते। इन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया ही क्यों? ये पागल है। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड तभी हुआ होगा जब दोनों चीजें फुलफिल हुई होंगी, और दोनों चीजें 7:05 पे फुलफिल हुई। इफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन व्हेन इसमें भी as against उन्होंने करेक्शन नहीं की थी फाइनल x and y respectively, इसका आंसर ए है, राइट? रिस्पेक्टिवली जब डाल दोगे तब है, but when they are just saying, when the contract is concluded, then you have to assume that it's concluded for both of them, and it's concluded for both of them at 7:05. But then again, the answer is D. The answer is A. I showed you now. Answer is A, and this is the official website. भैया प्लीज एक बार एक्चुअल क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में ए जस्टिफाई कर दीजिए। देखो, एक ये होता है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहे हैं और एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, ठीक है? एग्जामिनर पूछ रहा है कंक्लूड कब हुआ, ठीक है? कंक्लूड 7:05 पे हुआ, बट पूछना वो चाह रहा है कि रिस्पेक्टिवली कब हुआ, और उसका आंसर ए है। आप लोग पावरलेस होते हैं, आप लोग डी मार्क करके आते हैं और गलत हो जाता। मैंने भी डी मार्क करा था भैया, मेरे को याद आ गया, पर उन्होंने करेक्ट नहीं किया। हाँ जी,
ये भी मैं तो तभी तो बता रहा हूँ ना, ये सबसे डिबेटेबल पैसेज था। तो ठीक है भैया। हाँ गीतिका। भैया मेरे को तो अलग ही सी है, क्योंकि आप आपको जब सी लग रहा पैसेज पढ़ोगे ना उसकी लास्ट, हाँ उसकी लास्ट लाइन पढ़ के देखो है? आप ये सी पैसेज तो हो ही नहीं सकता गीतिका, अंडर नो सर्कमस्टेंस। बट पढ़ो, क्या क्या कहना चाहते हो? For example, by telephone, no contract will arise until the offerer receives the notification of acceptance. क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि कोई ग्लिच आया था उस कम्युनिकेशन के दौरान, तो नोटिफिकेशन एज इन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ईमेल वो सेंड हो गया होगा। मेरे हिसाब से तो मुझे वो लग रहा है। Receives the notification of acceptance does not mean phone पे notification आ गया. It means that he knows it. He is notified means he knows it. And that standard is, if you apply, then it can't be 404. It has to be 705. फिर तो भाई फिर से इनवैलिडेट आपकी हो आवाज जाएगा, कट गई। ए भी इनवैलिडेट हो जाएगा इस हिसाब से। नहीं, ए कैसे इनवैलिडेट होगा? 404 पे ईमेल सेंड हुआ, उसका एक्सेप्टेंस सेंड हुआ 404 पे, मतलब ऑफर रर के अगेंस्ट में हो गया। ऑफर ई के अगेंस्ट में तब हुआ जब उसने पढ़ा एक्चुअली उसको, और 705। तो आप तो बस इसको रिस्ट्रिक्ट करो, मतलब 705 इज द राइट आंसर वैसे, बट 404 तब होगा अगर इफ द क्वेश्चन वाज कि एज अगेंस्ट the offerer when it was completed it was 404, but as against the offeree it was completed at 705. So it can't be C, because you need to get the offeree's conclusion also of the communication of the offer. But unfortunately the answer was D. वैसे भैया ए भी हो सकता है ना, बिकॉज दोनों पार्टीज के एक्सेप्टेंस का टाइमिंग पर्टिकुलरली तभी तो मैंने 4 पहले and ए 7. बोला, तभी तो मैंने ए बोला। See, A is not wrong, because by saying Y you are also saying that हो गया conclude, but अगर आप इतना पढ़ोगे तो आपको लगेगा ओवरऑल कंक्लूड कब हुआ, और ओवरऑल तभी कंक्लूड हुआ होगा जब दोनों पार्टीज की कंप्लीट होगी, और दोनों पार्टीज की तभी कंक्लूड हुई जब 705 पे उसने पढ़ा एक्चुअली उसको, तब दोनों पार्टीज रिवोक नहीं कर सकते, और तभी कंक्लूजन माना जाता है उसको। भैया तो फिर अगर कंक्लूजन का दिया है तो फिर हम लोगों को खुद से अज्यूम करना है कि वो रिस्पेक्टिवली पूछ रहा है। हाँ, वो एग्जैक्टली वही तो गड़बड़ी है क्वेश्चन में, आप बच्चों से अज्यूम करवा रहे हो। लेकिन हाँ, लेकिन 404 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने जो एक्सेप्टेंस है तो वही हो ही नहीं सकता, 404 तो हो ही नहीं सकता। हाँ जी, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। मतलब मैं समझ रहा हूँ, मैंने भी गड़बड़ी करी थी इस पैसेज में, और in the absence of reasons you can only stick to the passage, and if you stick to the passage then there are a lot of assumptions that are involved, and CLAT ought to clarify those assumptions by making it explicit in the passage. X user in Agra makes an offer for sale, same situation at 2:03 p.m. However, A did not reach Y due to some technical error at the server which is located in Delhi. Thereafter, X makes a mobile phone call to Y at 4:04 and makes him the same offer was made in the email. In the mobile phone call, the offer is absolutely and unconditionally accepted by Y at 4:10 in the given situation. Where is the contract concluded? इसका आंसर बताऊं? भैया सी दिया हुआ है। सी दिया हुआ। कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि सी है? नहीं पता, क्योंकि अगर करते तो फिर वो बॉम्बे वाला वो मुंबई भी करना पड़ेगा ना, जो पहले किया था। बट व्हाट टू डू यार, ऐसा एग्जाम है।
भैया भैया इसका फिर इसका ऐसे एक होगा भी तो क्वेश्चन दिक्कत है नहीं जो हो सही जाएगा। से आया है। पहला वाला तो परफेक्ट है, पहला वाला परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, बी इज द आंसर. There on you have certain debates. So in this case what is happening is that email X ने भेजा सिग्निफाई करते हुए कि उसको खरीदना है सेकंड हैंड लग्जरी कार. तो जब उसने भेजा वो ऑफरर बन गया, लेकिन Y तक पहुंचा नहीं. ठीक है, क्योंकि गड़बड़ी हो गई दिल्ली के सर्वर में. फिर X मेक्स अ मोबाइल फोन कॉल, मतलब नया मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब नया ऑफर. तो 404 पे हुआ एंड द सेम ऑफर वाज मेड इन द ईमेल, मतलब आइडेंटिकल ऑफर था लेकिन मोबाइल फोन के थ्रू था. और 410 को वो एक्सेप्ट हो गया. तो 410 को एक्सेप्ट हो गया मतलब दे आर सेइंग आगरा में होना चाहिए क्योंकि आगरा से ऑफर हुआ था. बट इन द पैसेज इट सेज वेयर द प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड, और वो आगरा थोड़ी है. तो अगेन ये भी गड़बड़ क्वेश्चन है. सिमिलरली ये ठीक ठाक क्वेश्चन है थोड़ा, इसको अटेम्प्ट करो क्योंकि दिस इज मोर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग देन एनीथिंग एल्स. पढ़ो इसको, खत्म करते हैं, आज लंबी क्लास हो गई यार. Yeah, Shruti. Yes, sir. I think both 1 and 2 are correct. So option B is right. Option B. B, sir. D. D or B? B, bhaiya, B. B. Second option. Second. When the words of acceptance are spoken into the telephone, they are put into the course of the transmission to the offerer so as to be beyond the power of the acceptor. This acceptor cannot recall them. In the given proposition, which of the following is not true? Communication being instantaneous, the contract immediately arises. Yeah, that's true. Communication being instantaneous, the communication of acceptance is immediately complete as against the proposer as. हाँ, क्योंकि instantaneous है तो दोनों एक साथ हो जाते. तो B है इसका आंसर. नॉन इंस्टेंटेनियस तो नहीं है, नॉन इंस्टेंटेनियस तो है ही नहीं क्योंकि इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन. तो 1 and 2 है ऑप्शन. बट आपको लग रहा होगा ना कि कितना गलत है यार ये क्लैट एज अ क्वेश्चन सेटर. भैया आपने करेक्ट ऑप्शन सी क्यों लिखा है स्टार्टिंग में? किसमें? इसी क्वेश्चन में. सी कहाँ लिखा है? एक वो क्वेश्चन पे जाइए वापस. सी है स्टार्टिंग में. नहीं सी नहीं. सी नहीं है. प्रीवियस वाले क्वेश्चन का सी था तो वो कॉपी पेस्ट जब हो गया था तब. ठीक है, इट्स बी. यू राइट भैया. तो फिर जिन लोगों की रैंक वगैरह आती है वो लोग इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को क्या स्किप कर देते हैं या फिर वो लोग ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड आंसर कर जाते हैं? टिक करना पड़ता है क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब आपको पता नहीं होता कि ये क्वेश्चन गलत होगा या नहीं होगा. ठीक है. प्रखर भैया ने कहा था कि जिस साल भी ऐसा होता है ना कि क्लैट बहुत ज्यादा मतलब आपके एक्सपेक्टेशन से नहीं आता तो अगले साल अच्छा होता थोड़ा क्लैट. तो अच्छी बात नहीं यार, मतलब ऐसा कहा था उन्होंने. हाँ, मुझे भी आते ही. जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. मैंने ओल्ड पैटर्न देखा, मैंने न्यू पैटर्न देखा, मैंने प्रखर भैया के में तो भैया वही हो गया था, क्या नाम है, जो सिस्टम ही खराब हो गया था. और हमारे टाइम में टाइम का हो गया था कि टाइम बहुत लेट गया था सर. तो यार वही है,